Welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button and the bell icon. And I assure you, you will not be disappointed. So my topic today on live is going to be rewiring life. Now that we know that we reached the peak of this pandemic and now we are just flattening that curve, things are slowly going to come down and very slowly we will start entering the real life again. I would want you to just think about when we had taken a pause in our life, what good and what bad had happened. The good thing which happened was that we all realized that we have to live by needs and not by desires. We've learned that it's perfectly all right. We can survive in minimals. We survived in just night suits and pajamas. We didn't need a new dress every day. We realized that we can be with the family as much as we can, and that bonding happened, and then we gave space to nature. We saw so many birds, so many things change in the nature. So good things also happened, and with this good things also came a lot of lessons. So before we actually run back to life, we have to realize what are we running back to. किस चीज के पीछे हम वापस भागने वाले हैं? Are we going to go back exactly to the same thing what life was for us earlier, which was actually not life, it was just a rat race, and we actually hadn't realized that even if we run the rat race, we will still remain a rat. So there was no point, and there is no point running the rat race. We all have a different mission in life. We all are born with a different purpose in life, and there's no point running in the rat race. So it's very, very important that we realize before we get back to the normal life, what are the things we need to drop. And that is what my topic is today. What are the things we need to drop as we move ahead? आपने देखा होगा इवन जब माउंट एवरेस्ट पे हमारे जो माउंटेनियर्स जो चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पे, सो व्हेन दे स्टार्ट फ्रॉम द बेस कैंप, तो उनका बैग चेक होता है और उनसे कहा जाता है कि प्लीज डोंट कैरी एनीथिंग एक्स्ट्रा. कुछ भी एक्स्ट्रा मत लेके जाइए आप अपने बैग में. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आपको आपके बैग को चेक करके कहा जाता है कि डोंट कैरी एनीथिंग एक्स्ट्रा इन योर बैग. एंड वाई? मे बी मुझे ऊपर ठंड लगेगी, मैं कंबल डाल लूँ. मुझे ऊपर ठंड लगेगी, मैं चॉकलेट्स डाल लूँ. मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मैं खूब सारा पानी डाल लूँ. मे बी आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स एज आई क्लाइंब अप द माउंटेन. बट द शेरपाज विल टेल यू, नहीं मैडम, आप ये चीज़ों को खाली करो, आप इतनी चीज़ें नहीं ऊपर लेके जा सकते. एंड देन यू आर्ग्यू, क्यों नहीं लेके जा सकती? वाई कांट आई कैरी ऑल दीज थिंग्स? आई नीड देम. द आंसर विल बी, जैसे जैसे आप पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं, चीज़ें भारी भारी होते चली जाती हैं. 1 ग्राम की चीज़ 10 ग्राम, और 10 ग्राम की चीज़ आपको 200 ग्राम लगने लगेगी. और फिर जब ये चीज़ें भारी भारी होती चली जाएंगी, आप आराम से पहाड़ को चढ़ नहीं पाओगे. यू विल गिव अप हाफ वे से, मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा. आप हाँफने लगोगे, आप थक जाओगे. सिमिलर थिंग्स आप सबके साथ होता है व्हेन वी ट्रैवल. लेट्स से हमारी गर्ल्स की स्पेसिफिकली आदत होती है, मॉर्निंग में ये पहनूंगी, शाम को ये पहनूंगी, रात को ये पहनूंगी. सो आवर बैग्स आर ओवरलोडेड विद स्टफ, एंड देन मेनी अ टाइम्स एक्स्ट्रा बैगेज बोल देते हैं, तो आपको अपने साथ केबिन में कैरी करना पड़ता है. एंड देन यू हैव टू टैग दैट लगेज अलोंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर. और जब इतना भारी बैग, पीछे पिट्ठू, हाथ में बैग, पर्स, दुनिया भर की चीजें लेके व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, तो आप बार बार मन में यही बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल सो हैवी. मैं अगली बार हल्का चीज लेके चलूंगी. दिस इज अ लेसन फॉर मी. लेकिन वी नेवर लर्न. In the next journey, we are again loaded with exactly the same heavy bags, and we are arguing with the ticket counter कि please extra baggage मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो. But we have never learnt the lesson कि हमको जब आगे चलना है तो हमको अपने बैगेज को लाइट रखना है. If you want to move in comfort, if you want to travel in comfort, your baggage has to be light. And this life itself is also a journey.
We are all passing through this life. It's a journey. Eventually we all will be reaching a specific destination. And in this journey, if you continue to carry heavy things with you, you will never be able to travel comfortably. And believe me, we all carry heavy baggages with us as we travel through this journey of life. So today, my topic is drop it. Drop the things which are not needed as you move ahead in life. क्योंकि इतना heavy baggage अगर आप लेके चलेंगे तो आप जिंदगी में लुढ़केंगे फुड़केंगे और हो सकता है इसी पूरे भार के नीचे आप दब जाएं. So it's very important to drop it. So I'm going to tell you 10 things you have to drop. 10 ऐसी चीजें जो आपको जिंदगी से ड्रॉप करनी पड़ेंगी. अब जब हम लोग री एंटर करने वाले हैं जिंदगी की तरफ, जब हम वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ जाने वाले हैं, वही भेड़ चाल दोबारा बढ़ने वाली है, वही लोग, वही सिचुएशंस, वही इवेंट्स, हर चीज वैसी होने वाली है. तो फिर हम में क्या फर्क आया? What has this pandemic taught us? This pandemic has taught us to slow down. It has taught us कि हम धीरे चलें, हम अपनी गति को धीरे करें. और इस गति को धीरे करने में we have to rethink कि what are the things we should not carry as we move ahead in life. क्योंकि ये वो चीजें हैं, वो भारी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगी. So the first thing which you need to drop is comparisons. देखिए, हम सब एक different journey से आए हैं. We have all come here with a different mission. We all have been born into different families. We all look different. We all have different personalities. We all behave different. तो जब हमारे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो हम खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? We have a habit. हम इनफैक्ट 24/7 अपने आप को औरों से कंपेयर करते हैं. वो मुझसे सक्सेसफुल कैसे, मैं भी वही करती हूँ, वो भी वही करती है, वो मुझसे सक्सेसफुल कैसे हो गई, वो मुझसे बेटर कैसे हो गया, उसके पास पैसा ज्यादा कैसे हो गया, उसके पास बड़ी गाड़ी कैसे है. सो वी कीप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स एंड वी क्रिबिंग जलते भूनते रहते हैं अंदर ही अंदर. एंड व्हाट इज इट गोइंग टू गेट अस? इज इट गोइंग टू हेल्प अस गेट व्हाट अदर्स आर गेटिंग? बट रिमेंबर, जिंदगी में वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहली बात तो इस बात को समझें that we all have different lives, different journeys, different karmas, and according to what we are looking for is what we are going to get. And this one question मेरे एक स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा था. मुझसे किसी ने पूछा था ये सवाल कि अगर सब चीज किस्मत से ही मिलती है तो हम मेहनत क्यों करें? तो उसका जवाब ये है कि अगर आप एक बैंक के लॉकर में जाते हैं, बैंक के लॉकर जिसमें आपने अपनी सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएबल चीजें रखी हैं, तो उस लॉकर को खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए. एक आपकी चाबी और एक बैंक की चाबी. एक चाबी से वो लॉकर नहीं खुलेगा. बिल्कुल वैसे ही जिंदगी के लॉकर को खोलने के लिए, जिंदगी के ट्रेजर्स को खोलने के लिए दोनों चाबियों का होना जरूरी है. एक आपकी किस्मत और दूसरा आपका हार्ड वर्क. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत में नहीं है तो मैं मेहनत नहीं करूंगी, मेरी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी से मेरी किस्मत में नहीं लिखा, मेरे को पंडित जी ने कहा मेरे हाथ में लाइन नहीं है. मैं उन्हें कहती हूँ कि चाकू उठाओ, लाइन बनाओ, कल उसी पंडित जी को जाके दिखाना, वो कहेगा लाइन तो है. लाइन बनाई किसने? आपने बनाई. सो इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉब. इट्स यू. जो मेहनत करेगा तो फल मिलेगा. लेकिन अगर आप किस्मत पे छोड़ जाएंगे, इमेजिन कीजिए जंगल का राजा शेर, उसको भी अपनी केव से निकलना पड़ता है शिकार को ढूंढने के लिए. उसके मुंह में घर बैठ के खाना नहीं मिलता. सो यू हैव टू रिमेंबर that you cannot compare yourself to the other person. And if the grass is looking greener on the other side, तो हो सकता है that person is taking care of his grass. वो अपनी घास को पानी देता है, खाद देता है जो आप नहीं दे रहे हैं. And if you take care of your own grass, of course your grass will be definitely better. Maybe from the other, maybe the other will now look at your grass and say कि मैं उसने grass अपनी अच्छी कैसे बनाई. So it's very very important that we do not compare. So the first thing you have to drop is comparison. अपना फल किए जा, अपना कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. ऊपर बैठा है फल देने वाला. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर्मों का फल मिलता जरूर है.
ज़रूर मिलता है। मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज इन द आर्मी, और हमारी ड्यूटी होती थी टू पैक द डेड बॉडीज, टू बेथ द डेड बॉडीज, टू पिक अप people's vomit and their shit and everything. That's a part of being a nursing officer. और उस टाइम मैं ये सोचा करती थी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, why am I here, क्या मैं इसलिए यहाँ पे ऑफिसर बनने आई थी? But I didn't realize कि जो दुआएं मैंने बटोरी उन सेवा में, जो मैंने दुआएं बटोरी हैं, शायद उनका फल है जो आज मैं भुगत रही हूँ. So it's very important that remember, don't compare yourself to anyone. हर एक की अपनी किस्मत है, हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी पर्पस है लाइफ में. सो ड्रॉप इट. और ये कंपैरिजन एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता था पहले, और उस कंपैरिजन के चक्कर में हम लोग ने अपने कबर्ड्स कपड़ों से भर दिए, हमने अपने ड्रेसिंग टेबल्स मेकअप से भर दिए, हमने घरों में जूते भर दिए. नाउ टेल मी, इन दिस लॉकडाउन में आपने कितनी चीजें यूज करी? हार्डली एनी. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉप द कंपैरिजन. The second thing which you need to drop is your past. हम सब की आदत है, हम सब जाते हैं अपने पास्ट में. एक हमने छोटा सा मंदिर बना रखा है पास्ट में, वहां जाते हैं, दिया बत्ती करते हैं और मंदिर के आगे दहाड़े मार के रोते हैं, आई कुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दिस, वगैरह वगैरह वगैरह, रिग्रेट्स करते रहते हैं. एंड कौन ऐसा है हम में से जिसका पास्ट नहीं है? किसी का भी आप कबर्ड खोलो, हजारों स्केलेटन्स नीचे गिरेंगे. लेकिन अगर हम वहीं पे रह जाएं, अगर आप पास्ट को हिंदी में देखें, हिंदी में पास्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी में पास्ट को कहते हैं भूतकाल. हमको भूतों की जरूरत नहीं है प्रेजेंट में. और ऐसा भी नहीं है कि वरी करने से या रोने से, कोई शॉर्टकट से हम वापस पास्ट में चले जाएं, उसको चेंज कर लें. नहीं कर सकते. No one has ever been able to change their past and nobody can ever change their past. जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई. But what you have to do is to learn the lesson from that past. कि वो मैं दोबारा ना करूं, वो मिस्टेक मैं दोबारा ना करूं. Because if you continue to do the same mistake again and again and again, that is the biggest mistake of your life. So it's very, very important that we just drop going back to the past. पास्ट में हम जा नहीं सकते. फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, अगला मिनट का किसी को पता नहीं है. तो what do we have? We just have this moment. ये मोमेंट जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, this is the moment to enjoy. This is the moment to cherish. Because ये भी थोड़ी देर में पास्ट हो जाएगा. And then we will think कि हाय काश मैंने ये किया होता. So just drop these words, could, I could have, I should have. Just drop them and live in the present. क्योंकि ये मोमेंट जो प्रेजेंट को प्रेजेंट, देयर इज अ सेइंग, प्रेजेंट को प्रेजेंट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज द गिफ्ट गॉड हैज गिवन अस. सो ड्रॉप योर पास्ट. नो पॉइंट गोइंग बैक टू द पास्ट एंड क्रिबिंग एंड क्राइंग अबाउट इट. बीत गई, पीछे चला गया. एंड आप गाड़ी में भी देखें तो रियर मिरर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो आपका साइड मिरर होता है उसमें आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है. And learn from this lesson कि रियर मिरर में चीज छोटी इसलिए दिखाई देती है because it is in the past, it's gone. And what is on the sides is the present moment. So this is what you have to focus upon. So the first thing you have to drop is comparison. The second thing you have to drop is the past. The third thing which you have to drop is expectations. अब ये बहुत controversial चीज है, dropping expectations. हम लोग unfortunately हर चीज के ऊपर कंडीशंस लगाने शुरू हो गए हैं. तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम मेरे लिए क्या करोगे. लाइफ हैज सडनली फॉर ऑल ऑफ अस इट्स बिकम गिव एंड टेक. बट लुक एट द अनकंडीशनल लव ऑफ योर पेरेंट्स. हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं, बट जब वो एक्सपेक्टेशन की मे बी स्टेज बाकी जिंदगी में बहुत देर से आए, लेकिन एक बच्चे के लिए तो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते. दे डू थिंग्स अनकंडीशनली फॉर यू. बच्चे को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनको स्कूल में डाल रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर यू एंड इट इज योर लाइफ. You have to make out something out of it. So do not do things conditionally, and when you start expecting things from people and if you don't get them,
आई थिंक यू फील सो बैड अबाउट इट कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसने ये किया नहीं. लेकिन अगर आपके पास एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं और वापसी में किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, आई थिंक दैट बी द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन सी. सो डू थिंग्स अनकंडीशनली, जो भी आप किसी के लिए कर रहे हैं. एंड जब आप कंडीशंस रखते हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स कॉल्ड सेवा इन एनी फॉर्म. एंड इट्स अ गुड टाइम, believe me, it's a great time to give unconditionally, to do seva unconditionally. So when you do it for someone and when you see that smile on someone's face, I think that is the biggest satisfaction you can get. So don't do things with expectations. मियाँ बीवी में भी एक्सपेक्टेशंस होती है, माँ बाप में भी एक्सपेक्टेशंस आप रखने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड्स में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और फिर मुंह के बल गिरते हैं. बिकॉज दूसरा इंसान तो जिंदगी अपने हिसाब से ही जिएगा. वेन यू कांट चेंज समवन, चेंज योर सेल्फ. सो इफ यू चेंज योर सेल्फ एंड इफ यू जस्ट डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम पीपल, आई थिंक यू विल बी मच हैप्पियर. सो ड्रॉप एक्सपेक्टेशंस. द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू ड्रॉप इज ड्रॉप जजमेंट्स. हमारी आदत हो गई है, हम हर सिचुएशन को, हर इंसान को, हर चीज को जज करने लगते हैं. एंड we have to realize that every story जो हमें दिखाई देती है चेहरे पे, उसके पीछे एक और स्टोरी होती है. जो चीज दिखती है ना, जरूरी नहीं चीजें वैसी हों. Many a times people put up a face of happiness, but they are absolutely broken inside. So it's very very important that we don't be judgmental to people. I think अगर मुझसे कोई कभी कोई सवाल पूछे, what is that one thing you would want to change in this world? I will say I would want people to drop judgments. I don't want people to put that, you know, that my magnifying glass and judge situations with tooth and comb. No. So because when you judge someone, the other person is also judging you. Other person is also judging you. And there is this wonderful saying in Hindi के many a times, you know, जब judgments करते हैं हम लोग तो हम बहुत कुछ बोलते हैं लोगों के बारे में. And remember, when you gossip about people and when you're gossiping with people, don't forget the same people who are gossiping about others will gossip about you too, क्योंकि उनकी हैबिट है. आपको भी स्पेयर नहीं करेंगे. अगर कोई आपके साथ गॉसिप कर रहा है तो कल वो आपकी गॉसिप भी किसी के साथ करेगा, क्योंकि ये उसकी मेंटालिटी है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट यू डोंट हैव टू फ्लो विद इट. आपको लोगों की बातों में बहना नहीं है. रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. स्टोरी ये थी कि एक आदमी ने एक बहुत सुंदर मिठाई की दुकान खोली. सो अपने शहर में वो एक यूनिक किस्म की दुकान थी, मिठाई की दुकान. और उसने वो दुकान खोली और दुकान के ऊपर अपने नाम के नीचे उसने लिखा, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. सो एक दुकान खोली और दुकान में अपने नाम के नीचे उसने लिखा, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. इनॉग्रेशन हुआ. अब जब इनॉग्रेशन हुआ तो नेचुरली उसके फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह सब आए. तो एक फ्रेंड जब आया, वो मिठाई उसको ऑफर की गई, उसने मिठाई खाई. वाह वाह, क्या मिठाई, क्या मिठाई. और ऊपर नजर पड़ी उसकी, जहां पे बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. बोलते यार ये क्या लिख दिया तूने, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं. तो मतलब तूने खास ताजी पे अगर इसमें एम्फेसाइज किया है, लोग सोचेंगे जरूर ये बासी बेचता है, तभी इसने जानबूझ के ताजी लिखा है. तू एक काम कर, ये ताजी वर्ड यहाँ से हटा दे, नहीं तो लोग जज करना शुरू कर देंगे कि इसने ताजी लिखी है तो जरूर इसे ये बासी मिठाई बेच रहा है. दोस्त ने सोचा, हाँ भाई सच बोल रहा है तो मुझे तो हटा देना चाहिए. तो उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और उसको बोला कि ये ताजी वर्ड को हटा दे. तो ताजी वर्ड हट गया. अब वहां रह गया, यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं. अब थोड़ी देर बाद एक और दोस्त उसका आया. उसके दोस्त ने उसकी मिठाई खाई. अरे वाह, क्या मिठाई, क्या मिठाई. नजर ऊपर गई तो देखा, यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं. बोले यार ये क्या लिख दिया तूने, यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं. दिखाई दे रहा है चारों तरफ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं, तो तू कुछ क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ मिठाइयाँ मिलती है. देख कर साफ पता लग रहा है यहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं. एक काम कर, तो ये मिठाइयाँ वर्ड लोग कहेंगे कितना डम्ब है, मिठाई की दुकान पे लिखा है मिठाइयाँ मिलती हैं, हटा दे इसको. बोला हाँ भाई तू ठीक बोल रहा है. अपने नौकर को बुलाया, बोला ये मिठाइयाँ वर्ड हटा दे.
तो मिठाइयां वर्ड हट गया, अब रह गया क्या रह गया, यहाँ मिलती हैं। अब उसका तीसरा दोस्त आया, उसने उसकी मिठाई खाई, अरे वाह क्या मिठाई क्या मिठाई, ऊपर देखा यहाँ मिलती है, अरे क्या मिलती है, यहाँ क्या मिलती है, यहाँ पे मार मिलती है, यहाँ पिटाई मिलती है, यहाँ जूते मिलते हैं, यहाँ चप्पल क्या मिलती है यार, तेरे को समझ में नहीं आ, ये तूने क्या लिख दिया मिलती है, दुकान है तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना, ये मिलती है वर्ड हटा दे, ये मिलती है अच्छा नहीं लग रहा, तो ये हटा दे, ये मिलती वर्ड, कि मिलती दुकान है तो कुछ मिलेगा ही यहाँ पे। बोला हाँ भाई तू तो सही कह रहा है, अपने सर्वेंट को बुलाया, भाई ये मिलती हटा दे, तो अब क्या रह गया, यहाँ है, अब यहाँ है। अब उसका एक और दोस्त आया, उसने मिठाई खाई, फिर ऊपर देखा यहाँ है, यहाँ क्या है, ये क्या लिखा है तूने यार, ये तो बड़ी हाफ हार्टेड स्टेटमेंट है, क्या लिख दिया तूने, तुझे तो यहाँ लिखना चाहिए कि यहाँ मिठाइयां मिलती हैं, और खास करके लिखना चाहिए कि यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं, ये तूने यहाँ है क्या लिख दिया। हाँ भाई तू सच कह रहा है, और फिर उसने दोबारा वहां लिखवा दिया यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं, तो वापस घूम फिर के वहीं पहुंच गए। कहने का मतलब ये कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर आप हरेक की काम हरेक की बातों के साथ लुढ़कते फुड़कते रहेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉप द एक्सपेक्टेशन, द जजमेंट्स, यू ड्रॉप दिस स्टफ फ्रॉम योर लाइफ, अदरवाइज आप जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट यू टू ड्रॉप इज दैट स्टॉप प्लीजिंग पीपल, लोगों को खुश करने की कोशिशें बंद कर दीजिए। औरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी खुशी को खो देते हैं, वो चीजें करनी शुरू कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते, जबरदस्ती ऐसे काम करते हैं जिसके लिए हमें ना पैशन है ना हमें टाइम है, और दूसरा इंसान आपको क्या 100% श्योरिटी है कि वो खुश होगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो खत्म होती नहीं, आज खुश होएगा कल एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी और चीज वो आपके आगे रख देगा, तो यू कैन नॉट प्लीज पीपल। सो वॉट यू हैव टू डू इज टू प्लीज योर सेल्फ। अपने आप को खुश करना शुरू कीजिए कि हाँ आई हैव टू नाउ सेट अ बेंचमार्क कि आज मैं यहाँ हूं, कल मैं 1 इंच ऊपर जाऊंगा, आज मैं 1 इंच ऊपर आ गया, कल मैं 1 इंच और ऊपर जाऊंगा, आज मैंने इतना सीखा, कल मैं और ऊंचा जाऊंगा। सो यू हैव टू लिव अप टू योर ओन बेंचमार्क, प्लीज योर ओन सेल्फ, टेक योर चार्ज एवरी डे कि मैंने आज बेटर क्या किया, आज मैं एक बेटर इंसान कैसे बना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, जस्ट प्लीज योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आप औरों को क्या देंगे, जो आपके अंदर है वो ही देंगे, तो आप औरों को गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, यही औरों को देंगे। लेकिन अगर आप खुद से खुश हैं, शांत हैं, पीसफुल हैं, दिस इज वॉट यू विल गिव टू पीपल, और ये चीज आपके अंदर से ही दिखाई देती है। पीपल डोंट हैव टू जज यू फॉर दैट, बट अगर आप एक खुश इंसान हैं, आप एक पीसफुल इंसान हैं, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम योर ऑरा। सो वॉट यू हैव टू डू इज टू प्लीज योर ओन सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम औरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को सैक्रिफाइस करते रहे हैं। औरों को खुश रखिए, फाइन, जरूरी है, बट पहले खुद को तो खुश रखिए। जब आप खुश होंगे तभी तो औरों को खुश रख पाएंगे। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर एक को खुश रख सकते हैं, क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेशंस आपसे अलग रहेंगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉप प्लीजिंग पीपल। द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट यू टू ड्रॉप इज वरी। चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता कोई दवाई नहीं है कि आपको सोल्यूशन मिल जाए। चिंता करने से आप खुद को और परेशान करते हैं। देखो, अगर रोने धोने से, वरी करने से, टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो हम सब एक दूसरे के लिए दहाड़े मार के रोते, भाई चलो इसको प्रॉब्लम है सारे मिलके रोते हैं, इसको प्रॉब्लम है सारे मिलके रोते हैं। लेकिन रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्व होती है एक फोकस्ड माइंड के साथ, और फोकस्ड माइंड तभी मिलेगा जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, और क्लैरिटी तभी होगी जब वरी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें आप इनको घर ना करने दें अपने दिमाग में। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है तो टेंशन होती है, बट फॉर दैट आई ऑलवेज सजेस्ट, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होती, मैं भी ह्यूमन हूं, और मैं जो मैं
प्रीच करती हूँ, उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो टेंशन मुझे भी होती है. बट what I have done is I have designated time for my worry. सारा दिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होता. So what I have decided कि I am going to fix this 1 hour for my specific tension and worry, कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी इस 1 घंटे में बैठ के. एंड बिलीव मी, इट वर्क्स ब्यूटिफुली. सो मैं क्या करती हूँ, जस्ट बिफोर माई डिनर 1 hour I specifically keep it aside for as a worry time. I just close my shop, I close everything, I just go to a favorite corner of my house and there are special instructions, कोई मुझे उस time disturb नहीं करेगा. I carry with me an alarm on my mobile and I just sit there and I think about it. I take a paper and pen and I start thinking about the problem I have. अच्छा ऐसा करके देखती हूँ, अच्छा ऐसा करके देखती हूँ, अच्छा ऐसा करके देखती हूँ. तो when I focus, I definitely get better ideas rather than scattering my worry in 24 hours. क्योंकि उससे फिर मेरा जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा बाकी की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है that I am unable to really find a solution. So worry करो, but do it at a specific time, not 24/7. अगर आपका बार बार मन उसी चीज़ के लिए तरफ जा रहा है जिस चीज़ को आप टेंशन को सॉल्व करना चाहते हैं, I would suggest just wear a rubber band. ढीला तो टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला होना चाहिए. एंड जस्ट पुल इट, थोड़ा सा उसको पुल करो, आपको यहाँ दर्द होगा. प्लस इट विल डाइवर्ट योर अटेंशन कि ये वरी टाइम नहीं है. आई विल थिंक अबाउट इट एट नाइट. और दिन में कई बार मुझे 10 वरीज और हो जाती हैं. आई जस्ट राइट द पॉइंट डाउन कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव टू सॉल्व, दिस इज आई हैव टू सॉल्व, दिस इज आई हैव टू सॉल्व. एंड देन आई पिक एंड चूज कि व्हाट एम आई सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टुडे. And then I try to solve it in the evening. And believe me friends, it really, really works. So stop worrying about things. Then also stop, drop. You have to drop. You have to drop worry, the hurts. क्योंकि हमने अपने सर के ऊपर इतना बड़ा गठरी बांध के रखा हुआ है. इसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे को ये कर दिया, ये हुआ था, वो हुआ था, ये है, वो है. इतने लोगों को हमने अपने सर के ऊपर रख के रखा है कि हम दब गए हैं उस हर्ट के नीचे. वो गठरी इतनी भारी हो चुकी है हर्ट्स की, टेंशन्स की, कि हम उसी के नीचे दब रहे हैं. और क्या कहते हैं ना कि वो गुस्सा, वो टेंशन, वो जो हर्ट्स हम लोगों ने रखे हैं, अगर आप देखें तो ये सब चीजें एक एसिड की तरह होती हैं. जिस बर्तन में आप एसिड डालेंगे ना, वो पहले उसी बर्तन को खाता है एसिड, बाहर वालों को नहीं खाता. सो दिस हर्ट, दिस थिंग, ऑल दैट इज एक्चुअली सो मच accumulated from our lifetimes कि हम लोग उसी के नीचे दब रहे हैं. सो द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू ड्रॉप देम. सो हाउ कैन यू ड्रॉप देम? बाय फॉरगिविंग पीपल. बहुत मुश्किल काम है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसको चोट लगती है ना, दर्द, उसको ही पता होता है. मैं जानती हूँ किसी को माफ करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं. हम कोशिश तो कर सकते हैं. You just have to write the name of that person and say I forgive you and tear it into pieces, throw it in the dustbin. I'm not going to think about it from today. You can take a balloon, a gas का balloon, just एक उससे sketch pen से उस बंदे का नाम लिखो and just release it in the air and say I'm forgiving you. There are so many ways you can lighten that burden. You can maybe pick up a phone and call that person and say, well, you may be surprised that I'm calling you. Whether you want to talk or not, it doesn't matter. I've just called to tell you that I have forgiven you, and put the phone down. Now, if that other person understands, would call you back. If he doesn't understand or she doesn't understand, it doesn't matter. You have dropped it. आपने बोल दिया, दिल से निकाल दिया, बात निकल गई, खत्म. Now you make sure that you don't think about it again, because आपने एफर्ट लिया, आपने एफर्ट किया, आपने फोन उठाया, आपने बोल दिया जो बोलना था. बिफोर इवन द पर्सन सेज एनीथिंग, आपने बोल के छोड़ दिया. अब दूसरे इंसान का करना है कि वो आपको कॉल करता है कि नहीं करता है, या आपको फॉरगिव करता है कि नहीं करता. यू हैव लाइटेंड योर बर्डन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉप दिस हर्ट, फॉरगिव पीपल, विच इज टफ. आपको बहुत अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा. एंड that is one thing a lot of people carry with them when they die. You know कि काश मैं अपने उस दोस्त को फोन करके इसको बोल सकती हूँ कि मैंने तेरे लिए बुरा किया, आपने भी अगर बुरा किया कि आई एम सॉरी.
काश मेरे उस दोस्त ने मुझे फोन कर दिया होता. आई एम गोइंग विद दिस बिग हेवी हार्ट. So best is don't carry these things into your next birth if it ever happens. Just drop them, let them go. And of course the last thing which I want you to drop is being ungrateful. Stop being ungrateful to people. It's very important that acknowledge the people who have done something for you. क्योंकि किसी ने एफर्ट लिया, किसी ने अपना टाइम निकाला, किसी ने अपने रिसोर्सेज यूज किए, किसी ने अपने फ्रेंड्स को यूज किया टू हेल्प यू आउट अनकंडीशनली. बट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्नॉलेज कि मेरा हाथ मेरी मुसीबत के टाइम में किसने थामा था. असली दोस्तों की पहचान तभी होती है जब आपको सख्त जरूरत होती है और वो आपके साथ खड़े होते हैं. There was a very nice quote I read. If you really want to know who your friends are, just wait and watch who picks up the tears which you drop. Which hand comes first to hold the tear which you drop. And that is going to be your best friend. So these are, though there are many things we have to drop, these were some very important lessons which I thought I must share with you all, that you have to drop this as you move ahead in life. कि वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, एंड दे से कि कैलेंडर हर वक्त तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जब कैलेंडर बदल जाता है, और वही हमारे साथ हुआ. एंड डोंट यू थिंक ये सब हम खुद मांगते थे? इनफैक्ट ये जो पैंडेमिक हुआ, अगर डीप डाउन जाके इसके बारे में सोचो तो आप देखेंगे इट वॉज अ मास कर्मा. हम सब ने इसे मांगा था. कितने हम में से थे जो कहते थे कि काश मैं अपने घर से काम करूं, मुझे ऑफिस ना जाना पड़े. कितने थे जो काश मैं घर में ही रहूं, मुझे ट्रैफिक में जाना अच्छा नहीं लगता, ट्रैफिक करके जाना किसी इवेंट में अच्छा नहीं लगता, घर से इवेंट हो जाता तो कितना अच्छा होता. कितने बच्चे थे जो कहते थे मॉम मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, घर में ही स्कूल होता तो कितना अच्छा था. कितनी वाइफ्स कहती थी कि मेरे हस्बैंड घर में ही रहे, ऑफिस न जाए तो कितना अच्छा हो. सो एक्चुअली लुक एट इट, डोंट यू थिंक वी क्रिएटेड दिस मास कर्मा टू गेट इट? एंड नाउ दैट वी हैव इट, वी आर क्रिविंग एंड क्राइंग अबाउट इट. But now that we are cribbing and crying, we have to understand what is the lesson we have to carry forward when we move ahead into the new life after corona. और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आने वाली जनरेशंस में लोग एक दूसरे से पूछेंगे, ओह वर यू बॉर्न बिफोर करोना और आफ्टर करोना, और वर यू मैरिड बिफोर करोना और आफ्टर करोना. इट्स अ माइलस्टोन इन लाइफ. So let's make this milestone a beautiful one and tell the coming generations that we survived, and we survived with positivity, and we became more positive after this survival. So thank you very much for joining in. So thank you very much all of you. Have a great day ahead, but most importantly take care of yourself and of your families. Follow the rules. We are just, कहते हैं ना पहाड़ निकल गए पूंछ बची है बस. So बस थोड़े दिन की और हिम्मत दिखाइए, and we will all be on the other side of corona. All the very best. Stay safe, stay happy, and may God be with all of you. Thank you for watching. Bye.